Yes. So now we will do the last topic, which is understanding a simple harmonic oscillator. Okay. We wish to understand simple harmonic oscillator. There are a few examples of simple harmonic oscillator. For example, you have spring mass system, you have a simple pendulum. So these are all examples of simple harmonic oscillator. Actually, in simple harmonic oscillator, the restoring force, we say the restoring force is directly proportional to the negative of the displacement. For example, you consider a simple pendulum, and that simple pendulum was given, let's say, a disturbance of theta comparatively small, then you know that this will start to then oscillate about its mean position. Similarly, if we have a spring mass system and I have given it a small stretch in the spring, then there will be vibrations, to and fro motions about the mean position. It is because of the restoring force by the virtue of gravity, by the virtue of spring, whatever. But this is important that you consider force is directly proportional to minus of x. Sometimes you also write it in this form, that m d square x upon dt square is directly proportional to minus of x. Or sometimes you also write it as m d square x upon dt square is equals to minus of kx. This is all classical NCRT type of thing which we have done over here. But that has a meaning. That has a meaning because I have got a differential equation for myself. Like I can simply say del square x upon del t square, del square x upon del t square is equals to minus k by m into x. And I can simply write that considering k by m is equals to some omega square, let us consider that. I can simply write that del square x upon del t square is equals to minus of omega square x. And solution of such a differential equation, we all know, it is of this form. The solution of the differential equation of this type, del square x by del t square is equals to minus of omega square x, are of this type. X is equals to a, you can consider cos omega t plus phi, whatever. Okay. So the solution we have, and we know that this is the equation of the path traced by the body, whether it is spring mass system or it is a simple pendulum, where omega was equals to under root k by m, where omega is also known as the angular frequency. You can relate it to the linear frequency. 2 pi nu is equals to under root of k by m, or we can write that mu, which is the frequency of harmonic oscillator, is equals to 1 upon 2 pi under root k by m. Okay, but all this happens under certain limits. Who will tell me that this all is valid only under certain limits, and the limit is imposed on x? X should be, the displacement should be small. For a small displacement, you can apply all such equations. Otherwise, you will have to take in account higher order derivative terms also. Damping वगैरह भी आ जाए.
In this regard also we know one thing, that the potential energy is given by half of kx square. We will not going in the deep derivation of how we can get that, but अगर आप kinetic energy और total energy को निकालें, you try to relate it, सबसे पहले तो यहाँ से you will have to find out कि A का क्या magnitude होगा, what can be the maximum magnitude possible. Using all that you can find out that the potential energy is given by half kx square. ठीक है, और अगर ग्राफ बनाए आप, I am very sure many of you must know that this is, let's say, our maximum height which value or a pendulum or a spring mass can reach. So that's how we write the equation for potential energy. This is potential energy, right? Our potential energy is maximum at the extreme heights. So this is energy, एंड ये वाला जो कर्व है इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो ये देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन ही तो होती है. दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू सम मैक्सिमम, लेट्स से माइनस l टू प्लस l. Whereas if we want to find out the kinetic energy half mv square, it goes like this, because at this point the velocity is 0, and at this point x equals to 0 the velocity is maximum. So the maximum kinetic energy, green curve represents kinetic energy. So maximum kinetic energy at 0 displacement, minimum kinetic energy as heights, whereas opposite is true for potential energy because of total energy theory. This is your class 12th physics, and we will require it, but we will not take it into कि ये derivation कहाँ से आया, all that and this. ठीक है? Can we move on to the quantum mechanical treatment then? Remember that in quantum mechanics we only needed this. What is the potential energy? And we have come to this. So the Schrodinger's equation of such a system, of any system, is del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus u psi equals to 0. Here u equals to what? Potential energy क्या है? अभी निकाली हमने या बताई आपको? हाफ की x स्क्वायर. सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी del square psi by del x square plus 2m upon h cross square e minus kx square upon 2 psi equals to 0. अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता नहीं होता है. We have a constant, we have a term x square instead of x or something. इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा. हेलो. यस. हाँ बताइए. एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. मम्मी लोन ने टुकना एक है बेटा. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सर, हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले लेते? हाफ एम वी नहीं नहीं नहीं, टोटल एनर्जी आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, हाउ विल यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी? mgx से. नहीं सर, कई मतलब हर स्प्रिंग के लिए अलग है और हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्म भी है काइनेटिक को, वो निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए. See, I told you that in this particular case जो 12th क्लास की फिजिक्स है that we will not deal with. देखिए इसका तरीका क्या होता है, मैं आपको रेसिपी बता सकता हूँ.
how we find that out? The recipe remains, you start with the maximum value of x. ठीक है? If you find an expression for x, आप a के टर्म्स में उस x को रिप्रेजेंट कर देंगे और a का कुछ वैल्यू आएगी. Then you take derivative of that particular x with respect to time. So derivative of x with respect to time will give you velocity. Now you can put your physics in कि maximum height पर velocity 0 हो जाएगी और at x equals to 0 the velocity will be maximum. Using that you trace the curve. और फिर total energy is equals to kinetic plus potential से you can find out an expression for potential energy also. That remains the recipe. Is this what you are going? You were asking me? यही कह रहा था, जैसे हर डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए ग्रेविटेशन के लिए अलग फॉर्मूला है, अपने स्प्रिंग के लिए अलग फॉर्मूला है, और भी हर जगह के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है. तो हम डायरेक्ट टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करनी तो हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं. नहीं, आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इस तरीके का ही फॉर्मूला यूज करना है. मतलब यू आर राइट कि सर ये तो mgh वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. देयर आर मेनी अदर फॉर्मूलाज एज वेल, बट इन योर कोर्स यू हैव टू अप्लाई दिस स्प्रिंग मास सिस्टम kx स्क्वायर वाला फॉर्मूला. ठीक है? ओके सर. देन सो वेयर वर वी? हाँ, हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पे थे. एक्चुअली ये जो k बाय k है ना, अगर ये अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल्स टू k बाय m हो जाए, देन यू नो दैट स्प्रिंग मास सिस्टम L अपॉन g हो जाए, वो इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ वो क्या पेंडुलम टाइप का सिस्टम. बट आपके केस में kx वाला ही है. वी आर ओनली डीलिंग विद दिस x स्क्वायर टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है? नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए I told you we need to do a thing which you may not like, but we will anyways have to do that. यहां से एक चीज दिखती है जो आप लोग, अगर you are good at maths, then you could see that. Otherwise, Schrödinger's ने हमारे लिए सॉल्व करके रखी हुई है. He says that consider under root mk upon h cross की पावर हाफ into x is equals to y. Under root mk upon h cross की पावर हाफ into x is equals to y. Consider this. ठीक है? ये सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और व्हाटएवर यू कैन से. एक्चुअली यहां से देखकर मिल रहा है ये कुछ ये k लिया, ये m लिया, 2 से 2 कट गया, इसका अंडर रूट हो गया, x हुआ, h क्रॉस आ गया. बट वी विल कम टू दैट लेटर. आई नो कि यहां से एक आइडिया लग सकता है कि इस x को हमें कुछ चीज में तोड़ लेते हैं, वी विल फाइंड द आंसर. बट एज ऑफ नाउ यू कंसीडर दिस इज आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है? नाउ इफ आई से दैट this term which is whole mk upon under root ये इसकी power half is gamma, I can write that gamma into x equals to y. सही है? यहां से what I will get is that gamma dx is equals to dy, or I can simply write that gamma is equals to dy by dx. Gamma dy by dx. अब क्या करना चाहता हूं मैं? आई वांट टू रिप्लेस del square psi by del y square instead of del x square. मैं कोऑर्डिनेट्स ही चेंज करना चाह रहा हूं. If we will change the coordinate, then it will come to some standard form, जिसका कि solution लोगों को पहले से पता होता है. You can apply that equation like जो हमने यहाँ substitution लिया है in your exam. Either you use this, और अगर आपके पास कोई और तरीका है इस differential equation को solve करने का, then you can use that also. I prefer this one. Done. तो अगर del square psi by del x square given है, it is given to you. But what I want is, what I'm interested in knowing is what is del y by del y. तो you know that अगर मुझे ये करना है, इसको इसके इक्वेट करना है, तो I will have to first convert by dy by dx also. इसका मतलब dy by dx अभी हमने क्या निकाला था? It was equals to gamma.
और अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, देन इट मींस एक और बार इसको dy by dx से मल्टीप्लाई करना. It means I can write that del square y by del square psi by del y square gamma square is equals to del square psi by del x square. ठीक है, गामा एक्स मान लिया इस पूरे टर्म को. ये अभी हमारे बड़े काम का है. इसको अंडर रूट एम के अपॉन एक्स क्रॉस की पावर हाफ को, इसको ऐसे ही नहीं लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है स्टोडिंगर्स में. अभी आपको समझ आ जाए. बट एनीवेज, do you agree till this point that if I want to switch from x to y, then there should be a gamma square multiplied with it? Sometimes it becomes difficult to digest, but यस सर, आ गया. आ गया. अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट पुट डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर गामा स्क्वायर और अपनी पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं. सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं गामा स्क्वायर, इसकी जगह यहां से डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साई इक्वल्स टू 0. ठीक. नाउ हर किसी को गामा स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए. सो आई विल बी लेफ्ट विथ डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर के एक्स स्क्वायर इंटू m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, साई साई इक्वल्स टू 0. बस दोनों साइड गामा स्क्वायर से डिवाइड दे दिया. 2me h क्रॉस साई h, यहां से यहां तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी. इट्स इजी. ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यू विल हैव टू अप्लाई सम टाइम. इसको एनालाइज करके इसको समझना पड़ेगा. थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, इसमें नहीं लगेगा. एक बार डाइजेस्ट हो गया, देन यू विल अग्री, देन यू विल स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेल जो मैं बताना चाह रहा हूं. एंड व्हाट इज 1 अपॉन गामा स्क्वायर बाय द वे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन गामा स्क्वायर? सो इट विल बी h क्रॉस अपॉन अंडर रूट ऑफ mk. देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, गामा स्क्वायर विल बी रूट एम के अपॉन एच क्रॉस. तो 1 अपॉन विल बी एच क्रॉस अपॉन रूट एम. तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज एच क्रॉस अपॉन रूट एम. पीपल अग्री विद मी? यस सर. यस सर. ओके, जस्ट फॉलो. हाँ, एक एक स्टेप करते जा रहे हैं. डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, फाइन. 1 अपॉन गामा स्क्वायर की जगह आई कैन राइट नाउ h cross upon under root of mk, then I have to multiply it with by 2me upon h cross square psi minus h cross upon under root of mk k x square m upon h cross square psi equals to 0. ये इक्वेशन है. So I can simply write that this is equals to del square psi by del y square, doing something, h say h cross cancel, then I am left with 2e under root of m upon k और यहाँ एक h cross into psi. ये देखिए, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है. एक रूट के नीचे बचेगा, एक रूट m ऊपर बचेगा, तो उसकी जगह ये लिख दिया है psi. I've written it like this. Any problem with it? नो सर. नो सर. माइनस यहां देखें व्हाट वी आर हैविंग, इट इज लीडिंग अस टू समथिंग. एच क्रॉस से एक एच क्रॉस कैंसिल, एम के, तो आई कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच क्रॉस इनटू एक्स स्क्वायर. कैन आई राइट इट लाइक दिस? के एम गया, एक एच क्रॉस बचा, दिस इज इट. साई इक्वल्स टू 0. किसी को कोई दिक्कत? नो सर.
हाँ, you should not have any problem. Now you see अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई था, यहां ऐसे देखिए। तो अगर इसमें दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये देखिए इस इक्वेशन का ये हो जाएगा हल। डू यू एग्री? Yes. So I can simply write that this particular thing is nothing but y square. तो ये आ गया हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस समथिंग, अभी इसका भी हैंडल करते हैं व्हाट दिस इज। समथिंग इज 2e अपॉन एच क्रॉस अंडर रूट एम अपॉन के, इसका भी अभी करते हैं कुछ काम, माइनस वाई स्क्वायर, दिस होल इज वाई स्क्वायर नाउ, साई इक्वल्स टू 0 एंड दिस टर्म ये जो दिख रहा है आपको 2e अपॉन एच क्रॉस, अच्छा अंडर रूट के बाई एम होता है तो क्या होता है वो क्लासिकली अगर देखें आप ओमेगा। एग्जैक्टली अगर अंडर रूट के बाई एम होता तो ओमेगा होता, अब अंडर रूट एम अपॉन के तो 1 अपॉन ओमेगा होगा, दिस विल बी 1 अपॉन ओमेगा। सो आई कैन राइट सिंपली दैट इट इज इक्वल्स टू 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। लिख सकता हूं this whole term, and I can simply say that this whole term is equals to some alpha, let's say another constant. So finally my equation will reduce to del square psi by del y square plus alpha minus y square psi equals to 0. बस आपको यहां तक लाना है, एग्जाम में अगर आता है तो सॉल्व करके इस जगह तक लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सोल्यूशन पता होता है और इसकी चीजें भी पता होती है, तो यहां तक ले आएंगे, ये प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। You will get it, na? This equation. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then what we do is, अब देखिए वो कंडीशन लगाते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड्यूलस ऑफ साई स्क्वायर डी वाई हैज टू बी इक्वल्स टू 1 एंड यू कैन सिंपली से कि जब इस तरीके का सोल्यूशन आएगा आपके पास तो ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब अल्फा बराबर कोई 2n+1 है। इसे हम स्टैंडर्ड बताएंगे, मतलब जब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन में साई का सोल्यूशन आएगा तो इट विल एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू सम 2n+1 where n starts from 0 1 2 to so on. तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा वाज व्हाट e अपॉन h क्रॉस ओमेगा और साथ में क्या था 2 is equals to alpha is equals to 2n+1. So I can write that, इसको nth एनर्जी बोल सकते हैं en अपॉन h क्रॉस ओमेगा is equals to n+half, या फिर एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर is equals to n+half h क्रॉस ओमेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, you know that what is h cross? H cross is h upon 2 pi and what is omega? Omega is 2 pi nu. तो अगर मैं h cross omega लिखूं तो it means I am having h upon 2 pi multiplied by 2 pi nu, तो 2 pi से 2 pi cancel, I can also write it as energy is equals to n+half h nu. ठीक है, दरअसल होता क्या है कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर्म के। ये नाम कभी सुना है हर्माइट? No, sir. नहीं, मैंने भी पहली बार सुना था जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी, इसलिए एडवांस बच्चों के लिए रखी जाती है। नाउ यू आर एडवांस, नाउ अब आपने नाम सुन लिया है। हर्माइट पॉलिनोमियल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, इसीलिए इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। वी विल ओनली बी हैप्पी विद द एनर्जी इक्वेशन व्हिच वी हैव गॉट, जो कि इस कंडीशन से आती है कि हर्माइट पॉलिनोमियल तब सेटिस्फाई होंगे जब अल्फा इक्वल्स टू 2n+1 होगा एंड वी विल गेट द एनर्जी इक्वेशन गिवन बाय n+half h nu।
यहां पर n starts with 0, तो अगर n equals to 0 है, what is the energy? half h nu. करेक्ट, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन 2। वहीं अगर क्लासिकली देखें आप, तो जो मिनिमम एनर्जी होती है दैट इक्वल टू 0। ये डिफरेंस होता है क्वांटम ट्रीटमेंट में और क्लासिकल ट्रीटमेंट में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है क्वांटम ट्रीटमेंट में और क्लासिकल ट्रीटमेंट में। हालांकि एनर्जी तो हमने डिस्क्रिटाइज कर दी, एच न्यू का n प्लस हाफ, लेकिन मिनिमम एनर्जी एच न्यू बाई 2 होगी क्वांटम मैकेनिकली, और क्लासिकली एनर्जी 0 होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, समझ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बाकी हर्माइट पॉलिनोमियल्स वगैरह के सॉल्यूशंस हैं। तो एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते क्लासिकली, तो मान लेते हैं ये रही हमारी पोजीशन, ये रही हमारी पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, माइनस एल है, ये प्लस एल है। तो क्लासिकली जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इट कम्स लाइक दिस, साइन इनवर्स 1 अपॉन साइन इनवर्स टाइप का फंक्शन आता है। इट कम्स लाइक दिस कि क्योंकि सबसे ज्यादा रुकता कहां पर है, वेलोसिटी सबसे कम कहां होती है, एक्सट्रीम हाइट्स पर, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल रुकता भी वहीं है। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हाइट्स पर पता करने की ज्यादा होती थी। लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिकली देखा जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इस फॉर्म के होंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, ठीक है। 3 के लिए सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। जैसे जैसे आप सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन या n बढ़ाते जाएंगे, फाइनली आपका एक ऐसा n आएगा कि सोल्यूशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म। गुचुर मुचुर होगी, चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूं, यहां पे समझिए। क्लासिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाज कमिंग लाइक दिस, ठीक है, कि मैक्सिमम एट द एंड्स और मिनिमम इन द सेंटर। लेकिन जब हम n बढ़ाते चले जा रहे हैं तब हमें यह पता चलेगा कि आवर सॉल्यूशन विल बी एक्चुअली, द प्रोबेबिलिटी विल बी दिस फॉर्म, विल बी ऑफ दिस फॉर्म। इंडीड इट विल हैपन व्हेन n विल बी लार्ज। अदरवाइज ये देखिए आप, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाले पोर्शन है। तो जब n बढ़ा देंगे तब यो क्वांटम मैकेनिक्स गिव राइज टू रिजल्ट्स एज इफ इट इज सेम एज क्लासिकल मैकेनिक्स। व्हिच प्रिंसिपल इज इट? फॉर लार्ज n, quantum mechanics gives same result as classical mechanics. Which principle? So corresponding principle. Correspondence principle. Yes, exactly. तो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। तो अब हमने ये कोर्स, इस यूनिट को लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी किताब से करीब 200 से लेके 212 तक के जो पेजेस हैं उसे पलट कर, अगर आपको लगता है कोई चीज और समझनी है, यू कैन आस्क मी, बट whatever that can be asked in exam, most of that we have covered. अब कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हो सकते हैं, that we have to see later. तो एक बार इसे सिमुलेट करके इसको ट्राई करके देखिएगा घर पे, जो भी हमने डेरिवेशंस वगैरह किए हैं, लास्ट के 3 डेरिवेशंस और शुरू की 3 लेक्चर की या 3-4 लेक्चर की जो थ्योरी है, प्लीज ट्राई टू डू दैट एंड दैट्स इट। It would be sufficient for you as far as I believe. Okay, so this is it from my side for today, and in case you have any question or query, you can ask.